So good morning dear students. Today we are going to start with a new chapter in history, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Children, in this chapter we are going to deal with the two subtopics, that is first is Socialism in Europe and the other topic is the Russian Revolution. It has been divided into two parts which I am going to explain you into two ways. That is, first I am going to discuss about socialism in Europe and after that I am going to discuss about the Russian Revolution. So in this I am going to give you a brief description of this chapter. That is, first of all I am going to tell you about the socialism, that is socialism in Europe, the meaning of socialism, why socialism took place in Europe, what were the reason behind it, and what are we going to study in this chapter. And side by side we are going to study about the background of socialism, how it evolved and who were its propounders, and at last we are going to study about the different ideology. This is what we are going to study in socialism in Europe. After that we are going to read about the Russian Revolution. In Russian Revolution we are going to read what is the relation between the two, that is the Russian Revolution and Karl Marx. So first I am going to start with what is socialism. Children, this ism, everywhere you have seen there is nationalism, capitalism, socialism, radicalism, ism, ISM. ISM stands for the ideology. Ideology means the ideas. Like here, like nationalism, that is nation's ideology. Capitalism, capitalists' ideology. In this there is a social ideology. We are going to discuss about the social ideology. Now, in the brief description of socialism means a society in which the resources of the society, that is the land, the industries, whatever the resources are there, the economic resources are there, which are in the hands of the government. The government works on the economy of the country. The land is undertaken by the government. The industries are undertaken by the government. That is called as the socialism, or where the economy, where the resources are equally distributed among the people of the country. This is the meaning of socialism. सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लैंड, इंडस्ट्रीज, जो भी रिसोर्सेज होते हैं देश के, वो सब किसके हाथ में होते हैं? लोगों के हाथ में नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. और इन लोग की थिंकिंग ये थी कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए लोगों के बीच में, देश के लोगों के बीच में. ये सोशलिज्म की थिंकिंग होती है. नाउ वाई यूरोप ओनली, ये सोशलिज्म यूरोप में ही क्यों उखड़ा? इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करना. नाउ रिकॉल द फ्रेंच रेवोल्यूशन. The change which took place in Europe was in France only. Is it clear? Up when these thinkings of the France, I'm going to deal with it in detail after this topic discussing about this. When these thinkings of the France, it started going in different countries, they also wanted to bring a change in their own country. Now in इस chapter में हम we are going to study about the background of the socialism also. ये socialism कैसे आया, यूरोप में कैसे ये फैला and कहाँ से ये इवॉल्व हुआ था, who were its propounder, इस आइडियोलॉजी के लाने वाले लोग कौन कौन थे, and last we are going to study about the different ideology which was created in Europe. Okay. Now, after this, the second I am going to discuss, the second topic is the Russian Revolution. पहला था socialism in Europe. उसके बाद now we are going to deal, इस chapter में ही we are going to discuss about the Russian Revolution, जिसमें कि we are going to discuss about the background. उसके बाद हम 1905 revolution के बारे में पढ़ेंगे, फिर February revolution, फिर October revolution, फिर रशिया आफ्टर रिवॉल्यूशन, दैट इज यूएसएसआर बन गया था रशिया. उसके बाद स्टालिन, इससे पहले लेनिन आया था, लेनिन के बाद स्टालिन आया. स्टालिन और रशिया उसके अंदर कैसे चेंज हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एज ऑफ सोशल चेंज. ये यूरोप के अंदर सोशल चेंज कैसे आया. लेट अस रिकॉल द फ्रेंच रेवोल्यूशन.
फ्रेंच रेवोल्यूशन जो वहाँ पे चेंज आया था, आपको पता था वहाँ डायनेस्टिक रूल था, डायनेस्टीज़ को, किंग के रूल को ख़त्म करना चाहते थे, उसके बाद वो इक्वालिटी लाना चाहते थे, लिबर्टी लाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक राइट्स लाना चाहते थे। डेमोक्रेटिक राइट्स मीन्स क्या होता है, वहाँ पे सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। ये सब जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आया था। नाउ अब जब फ्रांस के अंदर ये चेंज देखा, people of different European countries, they started discussing about the possibilities. What the possibilities? The possibilities of bringing a change. So ये जो आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ जो सोसाइटी थी फ्रांस यूरोप के अंदर, वो अब वो पॉसिबिलिटीज़ सब लोग चाहते थे कि उनके यहाँ भी चेंज आए, बिकॉज दे वर फेड अप विद द डायनेस्टिक रूल ऑफ द कंट्री। क्योंकि वहाँ पे जो सोशल कॉज था, इकोनॉमिक कॉज था, पॉलिटिकल कॉज था, वो एक बड़ा प्रॉब्लम था, एक बड़ा बैकग्राउंड था, जिसमें कि अब पब्लिक जो है, सिटीजन्स जो है, चेंज लाना चाहते थे। तो फ्रांस को देखकर अब उन्होंने भी सोचा दैट दे शुड बी ब्रिंग अ चेंज इन देयर कंट्री। नाउ ये जो चेंज लाना चाहते थे, ये चेंज जो है डिफरेंट ऑल ओवर द कंट्री देखने को मिले यूरोप के अंदर। दीज आर वेरीड डिफरेंट। हाउ वर द डिफरेंट? क्योंकि कुछ लोग चाहते थे ग्रेजुअल चेंज लाएं, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे लाएं, और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे रेडिकल चेंज लाएं। रेडिकल चेंज क्या होता है? क्विकली सडन चेंज लेके आओ। सम वांटेड ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज मीन्स स्लो। अब फिर से मैं बता रही हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनके जो आइडियाज़ थे लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट्स को, वहाँ पे जब चेंजेस आए तो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज दे ऑल्सो थॉट दैट देयर शुड बी ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द कंट्री। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज इन द कंट्री, अब लोगों के आइडियाज़ डिफरेंट हो गए, वेरिड आइडियाज़ हो गए। वेरिड आइडियाज़ मीन्स क्या? डिफरेंट थिंकिंग के लोग। कुछ लोग कहते थे कि धीरे धीरे चेंज लाओ, एकदम चेंज नहीं लाओ, और कुछ लोग कहते थे कि रेडिकली क्विकली चेंज लेके आइए। सो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंट पोलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे, आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि डिफरेंट थिंकिंग के लोग आए। एक थे कंजर्वेटिव्स, इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, दूसरे थे लिबरल्स, एंड थर्ड वन वर रेडिकल्स। ये थ्री व्यूज सामने निकल के आ गए लोगों के बीच में, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। नाउ ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोप की हिस्ट्री में चेंज लाने के लिए। सो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अ चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। Now first of all I am going to discuss about the liberals. Now who were the liberals children? Okay, ये liberals कौन थे? liberals again, ये जो different, इनकी अपनी ओन आइडियोलॉजी थी, इनके अपने व्यूज़ थे, अपनी ओन थॉट प्रोसेस था, जिसमें कि वो सोचते थे। पहली बात, लिबरल्स वो लोग थे विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, हर रिलीजन्स को टॉलरेट करते थे, एंड साइड बाय साइड रिलीजन्स को कंट्रोल। और साथ ही साथ आपने देखा होगा यूरोपियन स्टेट में क्या था, यूजुअली जो है इन लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव करते थे एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से। ठीक है, टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, इसीलिए मैं आपको इसका पीछे बता रही हूँ कि यूरोप के अंदर जो थे वो इन लोग भेदभाव करते थे एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से। जैसे ब्रिटेन जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन को फेवर करता था, एंड Britain favored the Church of England, Austria and Spain, and favored the Catholic Church. And liberals जो है, these are also opposed to the uncontrolled dynastic rules. Uncontrolled dynastic rules means they were against the king's rule in their country, जिसमें भी कोई लगाम नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था, उनको पावर को कोई चेक करने वाला नहीं था, इसलिए लिबरल्स इसके भी अगेंस्ट थे। नंबर वन, उनके क्या इंपॉर्टेंट व्यूज़ था? दे टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, क्योंकि उस समय डिस्क्रिमिनेशन बहुत था एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से। नंबर टू, वो जो है अनकंट्रोल्ड पावर, जो डायनेस्टिक रूल थी, उसके अगेंस्ट थे। उसके बाद वो क्या चाहते थे? दे ऑल्सो वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वाई? क्यों चाहते थे? क्योंकि इंडिविजुअल्स की राइट्स को, क्योंकि वो किंग जो है अपने मकसद के लिए रूल करता था, अपने मन से रूल करता था, और वो इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं सोचता था, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के बारे में नहीं चाहता था। इसलिए उनका कहना ये था लिबरल्स का कि जो इंडिविजुअल्स की राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, लिबरल्स के ये सब व्यूज़ हैं। फोर्थ पॉइंट, साथ ही साथ उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। इज इट क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मीन्स डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे लोग जो है हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म करें, जो कि सब्जेक्ट टू द लॉज होनी चाहिए, जिसको कि एक वेल ट्रेंड जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकती है, चेक कर सकती है।
ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज, वही लॉज बनाएगी, ना कि राजा लॉ बनाएगा। एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, लोगों द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसको ये जो लॉज बनाएगी, और लॉज को इंटरप्रेट कौन कर सकता है, एक वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट किससे होनी चाहिए, रूलर्स से, ऑफिशियल से। माने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का उस समय होना बहुत ज़रूरी था। ना तो उसमें रूलर्स जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना कोई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो सकता है। साथ ही साथ इनकी थिंकिंग ये भी थी, दे वर नॉट डेमोक्रेटिक। इनको हम जो है ये नहीं कह सकते कि इन्होंने जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया और इन्होंने क्या कहा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, लॉ जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाएगी, ना कि राजा बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेट्स हैं। क्यों डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि वो जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माने क्या होता है, इसका बेसिक क्या होता है, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, जहाँ पे पीपल दोज हु आर 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स कैन हैव राइट टू वोट, कैन फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये जो लिबरल्स थे वो इस चीज़ को, इस पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना ये था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए और वोट उन्हीं को डालने का जो है मौका मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और विमेन के वो टोटली अगेंस्ट थे। दे वर अगेंस्ट द right to vote for the women in the country. So these were the views of the liberals at that time. Now we come to the second ideology of the people, that is the radicals. We are going to discuss about the radicals. अब ये radicals कौन थे? Now ये रेडिकल्स क्या चाहते थे, ये रेडिकल्स वो चाहते थे नेशंस जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन के द्वारा बनी हो। मीन्स क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक थिंकिंग है इनकी भी, रेडिकल्स की, कि जहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। इज इट क्लियर, रेडिकल्स की थिंकिंग ये थी। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने जो है विमेन सफरेज मूवमेंट को जो है बढ़ावा दिया था कि विमेन को भी राइट दी जानी चाहिए वोट करने के लिए। इज इट क्लियर, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये थोड़ा सा इनकी डेमोक्रेटिक थिंकिंग भी थी, क्योंकि आपको पहले बताया लिबरल्स जो है वो अगेंस्ट थे विमेन सफरेज मूवमेंट के, लेकिन रेडिकल्स इसके फेवर में थे। साथ ही साथ वो कहते थे गवर्नमेंट जो है कंट्री की पॉपुलेशन के जो मेजॉरिटी कंट्री पॉपुलेशन उसके ऊपर बननी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ इन्होंने जो है जो ग्रेट लैंड ओनर्स थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड थी, जो रिच पीपल होते थे, और जो वेल्दी जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे, वो जो है इनके अपोज थे। क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जो है रिसोर्सेज और जो इकोनॉमी इनके पास हो, ग्रेट लैंड ओनर्स के पास हो या वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के पास होनी चाहिए। ये इसके अगेंस्ट थे। वाई दे वर अगेंस्ट, बिकॉज सब कुछ जो है इनके पास था जिसको कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती थी। और क्योंकि वाई रीज़न वॉज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सबको बराबर मिलना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो है वो ये भी कहते थे, इससे जो है कहते थे इसकी वजह से अगर कंसंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में होएगी प्रॉपर्टी की या इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी आएगी, अनइक्वलनेस आएगी, कुछ अमीर हो जाएंगे, कुछ गरीब हो जाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि रेडिकल चेंज होना चाहिए। रेडिकल चेंज मीन्स क्विक चेंज होना चाहिए, तुरंत बदलाव लाना चाहिए। दीज वर द थिंकिंग्स ऑफ द रेडिकल्स। नाउ वी कम टू द लास्ट थिंकिंग, दैट इज द कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जो कंजर्वेटिव जो अपने ओल्ड ट्रेडिशन को बिलीव करते हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड रिचुअल्स को, एथिक्स को, इनको बिलीव करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव। नाउ कंजर्वेटिव्स जो है वो रेडिकल्स के लिबरल्स के दोनों अगेंस्ट थे। वो रेडिकल्स लिबरल्स की जो आइडियोलॉजी थी उसके अगेंस्ट थे। लेकिन क्या हुआ, शुरू से ही वो इनके अगेंस्ट रहते थे कि ये जो चेंजेस लाने थे वो कहते थे रेडिकल्स भी जो है गलत है, लिबरल्स भी गलत है, इनकी सोच अलग है। लेकिन जब रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अब इनका धीरे धीरे जो है इनकी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आने लगा। इन्होंने कहा कि अब तो बदलाव लाना जरूरी है, बदलाव के बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब इन्होंने अपनी सोच बदली, क्योंकि उनको अब लगने लगा कि ये चेंज जो है इनएविटेबल है, जिसको कि हम रोक नहीं सकते हैं। सो अब इन्होंने कहा चलो हम ठीक है, तैयार हो गए हम चेंज लाने के लिए। लेकिन उनका कहना ये था कि हमारा जो पास्ट है उसको आपको रिस्पेक्ट करना होगा, और साथ ही साथ चेंज तभी आएगा जब
स्लो प्रोसेस के थ्रू आएगा। हमको रेडिकल चेंज नहीं चाहिए, हमको ग्रेजुअल प्रोसेस से चेंज लाना चाहिए, लेकिन हमारे पास्ट को, हमारी एंशिएंट चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। ये कंजर्वेटिव की थिंकिंग थी। कंजर्वेटिव मतलब फिर से बता रही हूँ, जो ओल्ड ट्रेडिशंस, किंग्स रूल्स, इन सब में बिलीव करते थे, उन्होंने कहा चलो चेंज तैयार हैं चेंज लाने के लिए, लेकिन हमारे पास्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और जो चेंज लाना है वो हमको स्लो प्रोसेस के थ्रू लाना है। नाउ ये जितने डिफरेंट आइडियाज़ थे, ठीक है ना, ये जो डिफरेंट आइडियाज़ थे कंजर्वेटिव्स के, रेडिकल्स के, लिबरल्स के, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी एंड साइड बाय साइड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑल्सो। इज इट क्लियर? सोसाइटी के अंदर भी ये बहुत बड़ा चेंज लेके आया और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा चेंज ले आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका सामने आ सकता है कि राइट द व्यूज ऑफ द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। सो टुडेज वर्क आई वुड लाइक टू गिव यू टू गो थ्रू पेज नंबर 26 from your books and read the thinkings of the liberals, the radicals and the conservative. This much for today. Tomorrow we are going to continue further with the industrial society and the social change.